Hi friends, welcome to my channel, and here am I at the small garden. Look at me, check me out. I'm just having my sugarcane juice, and I just used henna, but that henna has come out pretty light. I had got from down south. I don't know, once you open the packet, I think I had used it in December, and then I just conditioned my hair and I applied that cream. That's the reason why my hair is looking like this. Once you apply henna, the hair becomes very dry. I put one whole bunch of अदरक in this. मैंने उसको बोला अदरक डाल दो. What I realized was, because I'm experimenting with food, right? तो जब हम खाते हैं रूम टेम्परेचर का वाटर, always when you're drinking, it should either be मटके का water which is cold, which is naturally cold, or room temperature water. ठीक है? Now in this hot summer season where it's 35 degrees, 37 degrees, of course मटके का पानी, but not fridge का water. Okay? Fridge का water is going to ruin your health like anything. And people are seeing me healthy and happy is because room temperature water. You will not get cough, cold, whatever. Plus it doesn't hamper your digestive system. I could have lolled in my home. I said, "No, Shanti, I need to be out. I need to have my sugarcane juice. I am trying to have it every other day or whenever I can come down to the small garden. I'll always have my. I've decided that I'll have a sugarcane juice because it's summer season, and this is like a medicine and a herbal drink. People use kala namak and jaya so that it doesn't give you cough. But I told them to put ginger and lemon in this, so I'm not putting that salt and other masala. I don't like to use extra flavorings in my food. Okay, so now I'll give you all tips. When you all are having, see, now I have experimented not having any water before, not having water after each meal. People drink a lot of water, right? Generally, mostly 99% of them. You should be sipping water when you're eating food, like just 2 sips. And chew your food well. Spend 20 minutes eating your meals. Chew it well. Today what I did was, I took my shower at around 8:45. I applied this at 6:30. I kept it for at least 2 hours, 2.5 hours. And in between I was doing my Ayurvedic oil massage. Then I was, especially to my feet. Then I did my sukha nashta khakra. No, I have my avla, I had my nimbu pani, and then I did my sukha nashta. I said by the time I take my nashta ho jayega, and I'll clean, I'll wash my hair. It's going to be a lot of time, and I'll lose all the energy. So what I did was that at 7:30 I had sukha nashta, and while I was having that, because it is so dry, it was tasting really good. Okay, it is so dry. So मैंने क्या किया उसको, I took this much, half of water in this, which was lemon flavored water. Okay, because I had already bitten the rid, and I had a bit of nimbu pani. So the nimbu pani was there with me, and I was having the khakra. I was in my small plate, and I was munching it properly, chewing, biting, and having two small sips of it, because that is dry. Especially when you're having dry nasta, we do a lot of mistake by drinking lots of water like this. So little bit, just kind of chewing it. I hope you understand. So that helped me quite a bit in digestion, and by the time I showered and all that,
It became around 9:30, half an hour. More than half. It took me half an hour. More than half an hour almost, because this is a messy affair. Once you apply henna, then I conditioned my hair and then I put cream. Yeah, lotion rather. Okay, on my head, so that it is smooth and manageable. Otherwise, it's like a battlefield with your hair. हल्का हल्का सा रंग दे रहा है ये. Actually, I had put it behind my this to check out. If I put it all in the front now, then it looks very LS. So this looks a little okay. It doesn't look really bad and it doesn't look good, doesn't look bad, something of that sort. So what I did was I applied a lot on my head and behind, so that if it is very very orange, there is damage control. Such a lovely bird. Wait 1 minute, I'll show you all. You can see this bird. She's so cute with that yellow beak. It looks like she's come from some cartoon. She's so cute. I think they eat snakes. These birds. Worms. They are non-vegetarian. Hello there. Hi. You know, when I'm giving you all these kind of tips, तो समझ लो. Because I'm experimenting. तो अच्छा कभी कभी हिट होता है, कभी फ्लॉप होता है. खाने के मामले में भी लाइक सैलड्स, ड्राई खाने के साथ सैलड यूज़ करेंगे तो अच्छा है. Some of these people will tell you कि सैलड पहले खा लो, गैस नहीं हो जाएगी. जिनका बॉडी ही टॉक्सिक है, फिर में गैस भी हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा. आई एम डूइंग ग्रास वॉकिंग. 1 minute, I'll show you all. I'm in small. See, I'm doing grass walking. This is another plot I have taken, another section, which is just close to this house. Come store, come go down. I don't know what it is. यहाँ क्लासेस रख सकते हैं. व्हाट अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज. यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें कर सकते हैं. कार्यालय बना सकते हैं. और डाक बंगलो टाइप रहता है ना, मूवीज़ में दिखाते हैं डाक बंगलो, वैसा लगता है ये 70s का, 60s और 70s का डाक बंगलो. सी, चेक इट आउट, लुक एट द कंस्ट्रक्शन. पुराने टाइप का कुछ तो बना. आई थिंक इट वॉज, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वॉज इट, आई कांट रिकलेक्ट, बिकॉज दिस गार्डन वॉज वेरी रद्दी बिफोर. They are eating worms. See worms. ये अपना खाना खा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं. ये क्या सोच रहे हैं क्या कि मैं क्या बनाऊँ. इनके लिए भी भगवान ने खाना बना के रखा है, इनके टाइप का. They have yellow feet and yellow beak. What's up with you? Are you flirting? Looking out for a mate. See, they're eating some seeds or something of that sort. So cute. Feel like giving them a big kiss. Come here. As though they understand English. Come here. You know, when yesterday मेरे सोसाइटी के गार्डन में that watchman was putting, मैंने बोला यहाँ तो पानी भी नहीं है, बंजर धरती हो गई है. Literally there are cracks in the soil. So no one is bothered about that garden. Once upon a time वो बहुत खिलता मुस्कुराता रहता था, because owners ही रहते थे ना. अभी रेंटल्स है 70%, 80%. कोई बॉदर नहीं करता है. 20% वो सारे ओल्ड हो गए हैं, सीनियर सिटीजन हैं. नोबडी. पहले लोग ना गार्डन में जाके फूल तोड़ते थे, अपना कोई पॉट्स रखते थे, गार्डनिंग करते थे लोग, मतलब अपने पॉट्स वहाँ पे रख के पानी डालते थे. तो दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन इन दैट प्लॉट ऑफ दैट एनर्जी इन दैट गार्डन. माय गॉड, आई थिंक हैव आई लॉस्ट वेट. यू नो, व्हेन आई माय फेस वाज लुकिंग वेरी ड्राई. Hey bird, you're cute. Come here. Come here. It's so cute. Even these people are not bothered. These इंसानों से क्या डरना. ये तो हमसे भी गए गुजरे. You know, I am so grateful to God that I could come out of so many things in my life which was impossible. वो जिस तरह सा माहौल था ना, I can't even tell you all कि कितना ज़्यादा
ऑपोजिशन और इतना ज़्यादा नरकुंड फैला हुआ था. I'll just go here. पिंक है ना तो I'll just wash this. यहाँ पे लोग नहाते हैं एक्चुअली. पिंक है ना, पिंक. I'll show you all the पिंक. इसमें से मेरे इसको धोया. शुगर केन का है ना तो बहुत ज़्यादा वो स्टिकी और वो हो जाता है. I'll show you the flowers. Obviously, beautiful flowers. And this is a shaded area. So when you are feeling down and out, come to this garden and always walk in the shade. What's the harm? People have made a living room. People come and sit here. Literally, they are lying down on the this because it's so peaceful and nice that you go off to sleep. Daryl sir was saying कि 6 बजे अगर कोई आता है ना, people come there. You see on the bench there are people actually sleeping. I said because that's the most relaxing atmosphere in the morning. आँखें बंद हो जाती है. I said I used to come here in the morning and I myself wanted to lie down over here. It used to be so pretty and pleasant, especially in the winters. Even in the summer season you feel nice. Whenever you all have the chance, if you all have the chance, please barefoot walking, grass walking, please do. I'm barefoot in my home, but grass. Okay, listen. You know, when I bought this, it's very near me. I think it's getting too comfortable. It's like that's your space, this is my space. What happens with this? See, I'll see how people are throwing water bottles. I'll show you. Glass. Somebody's thrown this water bottle. Watchman is not bothered. दूसरा कोई होता ना, स्पिक एंड स्पैन रखता. तो बोरवेल का पानी है ना. Not even moving their asses. Now they've moved their asses. So now I'll go and sit down. You know, the crow came in. I bought this packet and I kept it now, a plastic bag. So he's come and trying to pop in it and see what it is. Okay, now I'm just going and sitting down. I'm just, you know, this shower has made me so exhausted now. Seriously. It's a little hot. Sitting over there is better. You shift here, I'll go there. Shift here, na? हाँ. तुम्हारा ही है वो बेंच. बैठ जाओ. लेट जाओ. हाँ, ये this is better. I told him to sit there. My God, my face is looking much better, brighter. After doing grass walking, I'm feeling much better. If I'm telling you I'm looking much better, it's probably because of my grass walking. You can see the auras have changed. I was looking very dry inside the house. My face was looking dry. I was also feeling very sad. I had a bad backache yesterday. I don't know. It's a wrong posture or something. I had to literally lie on the bed the whole day yesterday. Yesterday I did my bhashanbazi and I went. There was a pain. I had that pain in me, but somehow I forgot about that pain the minute I reached home. I did not eat and drink anything. Seriously, मुझे मिठाई मिली. मेरे नेबर ने दी. मिठाई का वो लड्डू थे कोई तो. I had those laddus and I was just lying on the bed because the backache was so bad. Literally it was so bad. So I was like praying to God. I said ये क्या हो गया है पेट का दर्द. Then I got this backache. Then what did I do is that I rested. I was flatly on the bed. Then शाम को उठ के मैंने ये हिना का पैक वगैरह बनाया. And I switched
फिर 9 बजे पूरे लाइट्स ऑफ, स्विच ऑफ एज यूजुअल. I could not move an inch, literally, but still if I was not moving an inch also I had tears in my eyes. I said let me make a Hina pack. वो Hina pack बनाया मैंने, and I think I had a bit of khakra or something, and that was around 5 o'clock. I could not have any movement yesterday. I don't know, नज़र लगी या मेरा खुद का वो बैड posture है, क्या है समझ में नहीं आया. When you have sugarcane in the pure form ना, तुम्हें सर्दी नहीं होगी, लेकिन तुम ठंडा वो पानी मिलाते हैं या आइस वाला पियोगे, instantly you will get cold and cough and mucus, ये सब मिलेगा. Just because it is hot summer doesn't mean you have to have ice or cold वाली कूलिंग. नेचुरली जो कूलिंग है, जैसे नेचुरल कूलिंग, नेचुरल टेम्परेचर, वैसे वाली चीज़ें लेनी चाहिए. Maybe my body is adjusted to having room temperature, so if I'm going to have too hot or too cold, I'm not too fond of it. Even coffee, tea, I don't like too very hot. It has to be like suitably hot, not very. Some people have the piping hot. I don't like to have piping hot. You get the flavor of food when it's like suitably hot. फर्स्ट टाइम आई गॉट दिस रिज़ल्ट. अदरवाइज़ मुझे भर के बहुत सारा कंडीशनर डालना पड़ता था. मैंने कंडीशनर भी यूज़ किया और वो लोशन भी यूज़ किया. सो इसमें खुशबू भी अच्छी आ रही है, एंड देन इट इज़ बिकम लिटिल लाइक मॉइस्चराइज्ड एंड अच्छे बन गए मेरे बाल. सी यू हैव टू स्केड्यूल योर टाइम इन सच अ वे ना. जैसे अगर मुझे, जैसे मैं सुबह पॉन्ड पार्क, नाना नानी पार्क या चर्च विजिट, आई कुड हैव गॉन भाग के, क्योंकि हिना तो मैं अभी भी अप्लाई कर सकती थी. मैंने बोला नहीं, आई नीड टू, बिकॉज इफ़ आई स्टार्ट ऑफ अर्ली देन इट्स ओके इफ़ आई डोंट डू ऑल दोज विजिट्स. लेट मी डू दिस फर्स्ट, बिकॉज मेरा जो सर था ना वो बहुत गर्म हो रहा था. एंड सिंस आई यूज़ हिना ऐप, इट्स ऑलमोस्ट 3 months. First week of December I had used Hina, so that's almost now April, so all these 3 months have gone, almost 4 months, almost 3 months. So I said 3.5 months. I said no, I should be using Hina. So I did not use any concoction, nothing. I just used room temperature water, mixed the Hina powder and applied it. Because when you use other powders na, then the color depends on what proportion you use. I said I don't have I just want to use plain Hina first. So maybe I'm going to have a second application of another brand, and then let's see. सम ऑफ द सीनियर सिटीजन इन माई बिल्डिंग घर से बाहर नहीं निकल रहे. पता नहीं इनको क्या हो गया है. इतने पैसे हैं, दुनिया भर की बीमारी, इनका पैसा सिर्फ डॉक्टर खाता है, जैसे मेरी माँ का. बट शी वॉज़ वेरी प्राउड दैट शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड शी इज़ फिट एंड फाइन एंड हेल्दी. घर का काम पूरा करती है. शी इज़ वेरी प्राउड अबाउट हर सेल्फ. मैंने बोला इसका घमंड ही इसको ले डूबेगा. कंजूसी में रियली होर्डिंग थिंग्स एंड बीइंग कंजूस. आई टेल ओल्ड पीपल कोई फ़ायदा नहीं है. तुम्हारे बच्चों के पास मोर देन इनफ है, किसके लिए बचा रहे हो? सड़ के कुड़ के एक दिन तो तुम लोग की मौत हो जाएगी. देन यू ऑल डोंट हैव टाइम टू रिग्रेट ऑल्सो कि कहाँ पर तुम लोग का पैसा डॉक्टर ही लेके जाएगा. एंड मोमेंट में भी अगर तुम्हें कहीं रखना है,
आईसीयू में और लाखों रुपया खर्च होते, तो वाई नॉट अपने आप पे खर्च करो और अपना stop wasting your time watching TV and gossiping and being on the phone. When you are 60 50 प्लस से शुरू करना चाहिए, 60 प्लस से अपने लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहिए. अपने बच्चों के मामले में टांग अड़ाना बंद कर दो. टेल देम नाउ यू हैव ग्रोन अप, तुम लोग की शादी हो चुकी है, तुम लोग मैनेज करो अपना लाइफ. तुम लोग को हेल्प चाहिए तो हम लोग है. बेबी सिटिंग कर सकते तो बोलो, नहीं करना है तो मुंह पे बोल दो. कूदने की ज़रूरत नहीं है. तुम लोग को भी अच्छा लगता है टाइम पास करना है तो कर लो, बट डोंट यूज़ ग्रैंड चिल्ड्रन फॉर पॉलिटिक्स. इज़ अ नाइस प्लेस टू सिट, काउंट योर ब्लेसिंग्स. अभी मेरा तो इतना लाखों का नुकसान हो गया, वो अलग सी बात है. लेगेसी में भी अंडू वहाँ से भी लोगों ने रॉब किया. मैंने बोला मे बी आई एम अ मैग्नेट फॉर ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, फॉर बैड थिंग्स. मैंने सर्वाइव कर लिया. अभी मुझे डर, मैं सोच के भी हाथ पैर कांपने लगते हैं कि मैंने क्या क्या सर्वाइव कर लिया एक अकेले पर्सन ने. प्लीज़ इफ़ यू आर अ सीनियर सिटीज़न, निकलो अपने घर से बाहर. जल्दी उठना सीखो ना. अब मैं किसी को कुछ बोलती हूँ ना सीनियर सिटीज़न का, आप अंकल आप जल्दी उठ, नहीं मुझसे तो उठा नहीं जाता. अरे भाई मैं जस्ट बोल रही, नहीं मैं तो नहीं कर सकता. ये मेरे बिल्डिंग का वो ठरकी अंकल, दुनिया भर की रॉटन एवरी डे ही सड़ते जा रहा है ना, सड़ते कूदते जा रहा है ना. मैंने बोला यही घटिया शक्ल लेके अभी 6 फीट डीप इसको बरी करेंगे विद हिज हॉरिबल एटीट्यूड. जब मैं भाषणबाजी देती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आई एम मिस परफेक्ट. You know, when I see a psychopath recognizes another psychopath. A crazy recognizes another crazy. So when I see another crazy, I'm really telling you, if you see people on the stage, or people who are acting, or people modeling, or politics, or anything where they have to be public figures, where they have to speak, authors, designers, ये पूरे film industry type of people, anything to do with media, anything who have to be constantly in media, okay, and they have to speak. Let me tell you, on to the face, they are totally on steroids. They are into drugs, they are into alcohol, they are into tranquilizers, they are into painkillers, they are into weed. they कुछ ना कुछ लेके ही वहाँ पे या गोलियाँ खाएंगे, एक्सटेसी ये वो, या सुट्टा लगाएंगे, या इफ़ दे आर ऑन द हाईएस्ट लेवल दे आर ऑलवेज हेलुसिनेटिंग, आईवास का ये सब. अगर मुझे कोई बोलता है ना यहाँ पे स्टेज पे, मैंने बोला मुंह पे बोलूँगी कि ये गांजा मार के आते हैं, फूक मार के आते हैं. एनीथिंग इवन ऑन यूट्यूब यूल सी ना, एकदम एक्साइटेड वैसे बातें करते हैं. मतलब समझना चाहिए, सुट्टा मार के, अल्कोहल पी के, दे आर ड्रंक. Either they are hitting on caffeine, and I'm not talking only about these people, I'm talking people in the higher management also. They completely are drunk. I'll tell you ना, मेरा ex boss like दिन में ही 2 बॉटल बियर चढ़ा के आता था, क्योंकि एक तो उसका fraudulent काम था, ऊपर से unhappy in his life. तो ऐसे होता है, people get drunk on duty. Literally, either they are drinking too much and tea and coffee, or they are chain smoking, or they are having some substitute, pan masala, gudka,
कुछ ना कुछ पान टेक इट आउट चबाओ, बट आई एम टॉकिंग अबाउट जो चबा सकते वो चबाते रहते. बट वाई आई एम टेलिंग यू, क्योंकि ये आई एम नॉट सेइंग कि कॉमन पीपल नहीं करते, बट जब व्हेन यू सी समथिंग इन द मीडिया, द फ्रंट फेस, मतलब ये सारी चीज़ें वो करते हैं, चाहे वो औरत हो या आदमी. तो ये डोंट थिंक जस्ट बिकॉज अ लेडीज़ विद द बिंदी, साड़ी पहन रही है, मंगलसूत्र है, हाथों में ग्रीन चूड़ियाँ या लाल चूड़ियाँ पहन के भौंक रही है कुछ, तो समझ लेना bitch has taken some sort of a medicine to be there. भौंक रही है तो वही है उसका. और लगातार जो भौंकते रहते हैं, मतलब उनको तो चाहिए ही चाहिए होता है नशा, कुछ ना कोक, कैफीन, मिथ होता है ना, वो इंजेक्शन होता है, यू पुट इट इन द ब्लड स्ट्रीम एंड देन यू गेट दैट हाई. LSD. So when they start hallucinating, they think that everybody loves them, the crowd is in front of them, and they are performers and they perform better. Even these politicians and ये elites होते हैं ना, इनका reprogramming भी होता है. तो don't think कि वो रट्टा मार रहे हैं, and they are highly intellectual. Their intelligence is just 25%, 20%, 80% is programming. Their subconscious mind is completely programmed. अगर उनको एक puppet को मीडिया में लाना है, तो जब वो पपेट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसकी ट्रेनिंग होती है, फिर उसके ऊपर एक स्टोरी बनाते हैं, फिर उसको पॉपुलर बनाते हैं. पहले उसको कुछ गलत करेगा वो, फिर वो जब गलत करेगा फिर कुछ अच्छा भी करेगा. कभी कभी 60% गलत करेगा, 40% थोड़ा बहुत ठीक ठाक ओके ट्रूथ मिक्स विद लाइज करेगा, एंड दे ट्राई टू मेक देम पॉपुलर. सो यू अंडरस्टैंड एवरी फिगर विच यू सी इन द मीडिया इज़ टोटली फ्लॉड. मुझे कोई भी ऐसा बोलते ना कि ये, मैं बोलूँगी नहीं भाई, चाहे वो कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी सक्सेसफुल हो. आई एम टॉकिंग इवन अबाउट स्पोर्ट्स पीपल. इनकी रीप्रोग्रामिंग होती है, इनकी सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग होती है. दे आर ट्रेंड इन सच अ मैनर. ऐसे कोचिंग नहीं होती है. नहीं तो लल्लू पंजू लोग भी वहाँ पे जाके सिक्सर मारते हैं. मतलब ये बैट और बॉल उठाना, छक्के मारने तो दूर की बात है, आधा घंटा तक बैट भी हैंडल नहीं कर पाएंगे, ऐसे लगते हैं ऐसे लोग. तो यू अंडरस्टैंड, ये ऐसे ही नहीं होता है, इनकी बहुत रीप्रोग्रामिंग होती है. तुम्हें क्या लगता है, खा खू के विटामिन और प्रोटीन खा के भागते दौड़ते रहते हैं, वे पाउडर खा के दौड़ते रहते हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं इसलिए दौड़ते रहते हैं. ऐसे तुम्हारे बच्चे को भी दौड़ लगा दो, 10 मिनट भी नहीं टिक पाएगा. और ये इलीट्स घंटों घंटों स्टेज पे रहते हैं, ट्रैक पे रहते हैं. तुम्हें क्या लगता है तुम लोगों को? ये फैक्ट है. हाउ डू यू थिंक दीज एक्ट्रेसेस आर डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स? नंगी पुंगी बनने के लिए 2 मिनट नहीं लगते, बेकार की हरकतें करने के लिए 2 मिनट नहीं लगते. इसके अंडरस्टैंड, दे आर ट्रेंड, तब वो आ जाती है. दे आर नॉट जस्ट कैसे परफॉर्म करने के लिए आते हैं, इसलिए वो सिलेक्टेड फ्यू ही लोग आते हैं फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ब्रीड. आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड. चाहे वो तुम्हारा स्पोर्ट्स हो, पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो. मैंने बोला दीक्षित बहुत बातें कर रहा था, मैंने बोला धीरूभाई अंबानी इज़ वन ऑफ द मोस्ट करप्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस ही हैज़ डन. उसने जो झोल किया है इंडियन बैंक्स के साथ इतना, और सट्टे बाज़ार में जैसे स्टॉक मार्केट में इतना ज़्यादा झोल किया है. कभी उसने स्वदेशी बोल रहा है ना, पहले अपने ही लोगों के बारे में. पोस्ट यू डोंट टॉक अबाउट द अंग्रेज, यू टॉक अबाउट 1947 के बाद हमारे पॉलिटिशियंस ने ही हमारी परवाह नहीं की है, हमें बेच दिया, हमें बलि चढ़ा दिया. उसका कुछ नहीं. आए दिन ये कर्मचारी हमें थूकते रहते हैं. मैंने बोला तुम्हारे यूपी बिहार में देखो, एटलीस्ट ये शहर में तो दिखाई नहीं देता. अभी भी कास्ट सिस्टम चलता है वहाँ, तो इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं वो कास्ट सिस्टम. वहाँ तो लोग इतने पागल है ना, 5-5 रुपये के लिए भी बंदूक निकाल के, अपना तमंचा निकाल के शूटिंग करते हैं. किसी को भी रेप कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, लूट मार करते रहते हैं तुम्हारे यूपी बिहार में. वो तो दिखाई नहीं देता है. बस देश का गोल गोल घूम के स्वदेशी, वो गांव ग्रामीण में क्या हो रहा था. मैंने बोला ये कहानी है, स्टोरी टाइम है. आई सेड यू कट डाउन योर स्टोरीज एंड स्टॉप talking about the foreigners and Europeans. Let's concentrate what's happening in India, very much in India. I'm telling you, the caste system is very much prevalent even now.
You might be well to do, but if you're not having that surname or something of that sort, I don't think you will be entertained. Just because if you have little bit of money, people might just tolerate you here, there and everywhere. ये फैक्ट है. एक जोश आता है उनके अंदर. ऑल ड्रंक, या तो वाइन कॉफ़ी कुछ ना कुछ लेके ही वो स्टेज पे चढ़ते हैं. व्हाट अबाउट द रिलीजियस फिगर्स? ऑफ कोर्स देयर ऑल्सो आर इक्वली इन्वॉल्व इन टेकिंग सब्सटेंस अब्यूज़. पॉसिबल ही नहीं है कि घंटों घंटों उनसे गॉड हैज़ इंस्पायर्ड मी. मैंने बोला गॉड इंस्पायर्स यू. इफ व्हेन गॉड इज़ इंस्पायरिंग यू विल बी हम्बल. तुम्हारे टॉक्स हम्बल होंगे, तुम्हारी लाइफस्टाइल हम्बल रहेगी. और जो चीज़ें तुम्हें पता नहीं है उनका तुम डेढ़ क्षण पना नहीं करोगे. वन ऑफ द मोस्ट करप्ट प्रैक्टिसेस. एंड व्हाट डू यू थिंक दिस टाटा बिरला, इनके छोटे छोटे दुकान होते थे या छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं ना, ओवरनाइट दे लाइक इवेंचुअली दे बिजनेस मैग्नेट्स जो करोड़ों में खेलते हैं. तो डेफिनेटली इनकी बैकिंग कुछ ना कुछ होगी. यूरोपियंस ही होंगे, अमेरिका होगा, कोई ना कोई बैकिंग है इनके पीछे. ये दे जस्ट जो मनी द रॉथचाइल्ड का जो पैसा है वो घूमता रहता है. तो ऑन द सरफेस लेवल दे सेड कि नहीं ये किराना का दुकान खोल के ये इतने बड़े रिच हो गए. मैंने बोला ऐसा होता है क्या? होता है क्या ये? देयर इज़ ओनली वन फैमिली रूलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. वो तुम्हारी अंबानी की तरह आके शादियाँ करके फ्लैश आउट नहीं करेंगे अपने आप को. बट दे ओन द एंटायर फाइनेंस ऑफ द वर्ल्ड. ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो इनकी जो बैकिंग रहती है वो कहाँ से आती है? फॉरेन से ही तो आती है. बट दिल से हमने इस बैंक से लोन लिया, मे बी द ट्रांजैक्शन दिखाने के लिए. वो पहले के ज़माने में क्या होता था, दिखाने की भी क्या ज़रूरत है. एक प्रेस, पोपट जैसे एक प्रेस को रखते थे इन 50, 60, 70. सब लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे, माल मसाला. घंटा तुम लोग कुछ कर सकते हो, और घंटा यू ऑल विल अंडरस्टैंड द कॉम्प्लिकेटेड वर्किंग सिस्टम ऑफ फाइनेंस और पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन. You will not know anything of it. The money is, there's a movement of money all the time. I won't be surprised. This recession going on ना, सबसे ज़्यादा मार किसको लगेगी? सी अमेरिका को रोना धोना क्या है? रिसेशन. वहाँ तो बच्चे भी बराबर से पैदा नहीं हो रहे हैं, और जो पैदा हो रहे हैं वो भी टेढ़े मेढ़े होंगे पोंगे. वहाँ पे होमलेस लोग हैं. आई वॉज जस्ट थिंकिंग ऐसे होमलेस. मैंने बोला ये पब्लिक को ऐसे बिठा के रखा है उन लोगों ने. मतलब तुम्हारी पब्लिक कितनी वेली है. इंडिया में तो समझ में आता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में समझ में आता है, तो तुम लोग इतने वेले हो. जापान एंड कोरिया पीपल डोंट बिलीव. दे माइट बी शोइंग के ड्रामा एंड ऑल दैट अबाउट लव एंड रोमांस, लेकिन वहाँ पे कोई बच्चा पैदा नहीं कर रहा है. क्योंकि एक तो पीपल हैव बिकम वेरी सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड, और वो एक या दो ही बच्चे रहते हैं. सो दे आर मोर मटीरियलिस्टिक. दे रन बिहाइंड दीज लग्जरी ब्रांड एंड हैविंग अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. और क्यों ना हो, दे आर अ डेवलप्ड कंट्री. सो वॉट एवर दे आर बैकग्राउंड इज टीचिंग देम,